Good morning, students. I Pan Sharma coming with the second module in structure of atom. Today our topic will be Pauli exclusion principle. Students, in last lecture I discussed quantum numbers, and I would like to remind you, in quantum numbers there are four numbers, and that is principal quantum number. Second one, that is azimuthal quantum, that is represented by L, and third quantum number that is magnetic quantum number, that is denoted by Ml, and fourth one, that is spin quantum number, that is represented by Ms. Or you can say this first quantum number, that is principal quantum number, tells about the cells. You know, in the cell there is subcell, and this second quantum number, that is azimuthal quantum number, tells about the subcell, and third one, it tells about the orbital, and fourth one, it simply tells about the rotation of electron on its axis, axis rotation. बच्चों, you can understand like this. एटम के अंदर सबसे बिगर पार्ट क्या होगा? सेल होगा. सेल के अंदर क्या होंगी? सब सेल्स होंगी, और सब सेल्स के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द सीक्वेंस. It tells about the cell, it tells about the subcell, it tells about the orbital, and in orbital what is there? There is a electron. And these electrons with a opposite spin. और हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था ऑर्बिटल को, लाइक दिस. और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड वन, वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे. एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या कहा था? प्लस हाफ कहते हैं. वैसे आप माइनस हाफ भी कहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर ये माइनस हाफ होगा तो ये प्लस हाफ होगा, ये प्लस हाफ है तो इट विल बी माइनस हाफ. Or also from these we come to know, in a particular cell orbitals can be calculated by this formula n square, and number of electrons in a particular cell, it is calculated by this formula 2n square, that was explained in tricks. Now in particular cell, how many subcells? That is equal to number of subcells are equal to the number of cells. That is there. In a particular subcell, how many orbitals? That can be known by 2l plus 1. And in particular subcell, how many electrons? That is known by this formula 2l plus 1. Like this we discussed the quantum numbers, and also we have come to know, in S subcell, keep in mind, in S subcell there is one orbital. ये हम प्रूव कर चुके क्वांटम नंबर्स में. These are the subcells, or here I am writing orbitals. In S subcell one orbital is there, and in P subcell 3 orbitals are there, and in D subcell 5 orbitals are there, and in F subcell there are 7 orbitals. And in one orbitals, how many electrons can be possible? Maximum 2. So electrons in s orbital or s subcell, don't confuse about this. सबसेल कह रहा हूं तो जैसे s सबसेल कह रहा हूं तो इसका मतलब उसमें एक s ऑर्बिटल है.
इफ आई एम टेकिंग ऑफ द पी सबसेल, इसका मतलब उसमें क्या है, 3 p ऑर्बिटल्स है, px py pz। जैसे मैं यहां कह रहा हूं डी सबसेल है तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स है, लाइक दिस, डी के 5 ऑर्बिटल है। एफ सबसेल में 7 f ऑर्बिटल्स हैं, और देयर आर कॉमन थिंग्स सबसेल एंड ऑर्बिटल, डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही कह सकते हैं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2। पी में कितने होंगे, पी सबसेल या ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। डी में कितने होंगे, 10, एंड एफ में कितने होंगे, 14। ये आपको रिमेंबर करना है, यू मस्ट रिमेंबर इट। एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स, एंड एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स। और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। लाइक दैट, दिस इज वन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमें क्या बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये हमें ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, आई रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यू नो। और ये कौन कहता है, पॉली एक्सक्लूजन कहता है किसी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी ऑल 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर। 4 वैल्यूज कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n, एजिमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, और स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज ms। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी चारों वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स कांट बी सेम। इफ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स, इफ n is equal to 3, for this n can be 3, no doubt. Maybe L here 0, L can be here 0, and ml here also 0, and here ml is 0. ms if here plus half, so this can't be plus half, it must be minus half. Or you can say 3 values of quantum numbers can be same, but 4th one must be different. This is Pauli exclusion principle. First you note down statement of this principle, then I will further proceed. Statement ऐसे लिखा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। No 2 electrons in an orbital, no 2 electrons in an orbital can't have same value, or you can't have same set of 4 quantum numbers. Same set of 4 quantum numbers. 4 quantum numbers. I think statement this example से बिल्कुल justified है। मैंने क्या कहा, what I have told, in an orbital there are 2 electrons and they must have, or they don't have, all values are same. 3 may be same, but 4th must be different. Spin quantum number, or in other words you can say 2 electrons in an orbital must have opposite spin. 2 electrons in an orbital must have the opposite spin. It means if there are 2 electrons in an orbital like this, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो सेकंड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इनके स्पिन्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आफ्टर पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, और सिंपली वो क्या कहता है, किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन, वन रोटेट इन क्लॉकवाइज, अदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, 3 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम बट फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। That was about the Pauli exclusion principle. Now come to the F-bow principle. That is very important. इसको समझना must for all the students. F-bow principle, और ये आपको ना इंटरेस्ट क्रिएट करा देगा केमिस्ट्री के अंदर। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है F-bow principle, और इसका थ्रू आउट केमिस्ट्री पढ़ोगे यूज होता रहेगा। F-bow principle क्या है ये देखो, ये हमें देखो लिसन, सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल्स, सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना कहां, ऑर्बिटल्स में, उसका क्या पैरामीटर है वो डिसाइड किया है F-bow प्रिंसिपल में, और बच्चों के माइंड में आता होगा, और कई बार कॉम्पिटिटिव के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है दिस वर्ड, और बच्चे एकदम से करते साइंटिस्ट है ये, दिस इज नॉट साइंटिस्ट है, और ये एक जर्मन वर्ड है स्टूडेंट्स, इट इज ए जर्मन वर्ड, और इसका मतलब होता है, मीनिंग ऑफ इट, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्ड करना। ये जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन वेरियस ऑर्बिटल, उसके लिए हमें एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, वो एनर्जी का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, ये इसका मेन है। तो F-bow प्रिंसिपल क्या कहता है, जो फिलिंग है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in various orbitals as per increasing energy, filling of electrons in various orbitals as per increasing energy. It means first orbitals filled having lowest energy and so on like that, and this energy of orbital, किसी orbital की energy that is decided by sum of 2 quantum numbers, or that is called n+l rule. And you know, n is principal quantum number. It tells about the cells. And this one, this is algebraic quantum number. It tells about the subcells. And you know, n and l never be seen. अगर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, तो दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। क्वांटम नंबर्स में हमने डिस्कस किया था कि n और l की वैल्यू नेवर बी सेम। अगर n इज 4 तो l कांट बी 4, इट कैन बी 3, it can be 2, it can be 1, it can be 0. If I say n is equal to 2, क्या l की वैल्यू 2 होगी? नहीं ना, तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल है? सिर्फ 0 and 1. You know very well. अब देखिए n क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है,
और एन की वैल्यू यू नो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 लाइक दिस। और एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। किसी भी सेल में ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एन 1 2 3 4। एल किसके बारे में बताता? सब सेल। किसी भी सेल की सब सेल की बात की जाए, कभी भी अगर एल की वैल्यू आपको 0 मिल जाए किसी भी सेल के लिए, तो 0 हमेशा किसके लिए होती है? एस सब सेल के लिए होती है। और 1 कहीं भी मिल जाए, इट इज फॉर पी सब सेल, एंड 2 मिल जाए तो इट इज फॉर डी, एंड 3 मिल जाए तो इट इज फॉर एफ। Make more clarity here. If I say 7s, now this value is n, जो आगे लिखा रहता है, ये क्या होती है? किसकी वैल्यू होती है? n की। और ये जो s है, ये किसकी वैल्यू है? l की। किसकी है? l की। इसका मतलब यहां n की वैल्यू क्या हुई बोलो बच्चों? 7। और व्हाट अबाउट द l? अभी मैंने और पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब भी s हो तो l की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0। तो l की वैल्यू क्या रहेगी? 0। आई कैन क्लियर टू यू। इफ आई से 2s, यहां मैंने व्हाट आई हैव चेंज्ड? सेल चेंज। ये किसकी वैल्यू होती है? ऑलवेज n की। और n की वैल्यू व्हाट इज इट? 2। एंड यू नो सेल कोई भी हो, एस आते ही एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। तो यहां एल की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। और यू टेक 1 or 2 more examples. If I write here 3D, तो यस ये किसकी वैल्यू होगी? n की। तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। और d, देखो कोई भी सेल हो, d की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो क्या होगी? l की वैल्यू क्या होगी? 2। आई थिंक क्लियर टू यू। इफ आई राइट 2d, क्या राइट? 2d, तो व्हाट इज इट? दिस इज वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज दिस? n की वैल्यू क्या होगी? 2। और अभी मैंने क्या कहा था? किसी भी सेल में d जो भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2। तो व्हाट विल बी दिस? l की वैल्यू क्या होगी? 2। बट यहां बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। व्हाट इज दिस? अब मैंने ये लिखा है, और n और l की वैल्यू नेवर बी सेम। तो n और l की वैल्यू कांट बी सेम। तो ऑन बेसिस ऑफ इट वी कैन से 2d ऑर्बिटल नेवर एग्जिस्ट। क्लियर? तो 2d ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? n की वैल्यू 2 होगी। अगर एग्जिस्ट होगा तो l की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 2। और आपको पता है n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्लियर? अब मैं कुछ ऑर्बिटल्स लिखता हूं, फील करवाता हूं आपको टॉपिक को। देखिए 1s, फर्स्ट सेल में s ऑर्बिटल होगा, क्या होगा? अच्छा आप देख लो 1s, क्या 1p पॉसिबल है बेटा? टेल मी, 1p पॉसिबल है? देखो लिसन, अभी मैंने कहा था l की वैल्यू 0 हमेशा किसके लिए होती है? s के लिए। 1 किसके लिए होती है? p के लिए। 2 किसके लिए होती है? d के लिए। एंड 3 किसके लिए होती है? f के लिए। अब देखिए लिसन, और ये भी मैंने आपको बताया n और l की वैल्यू कांट बी सेम। देखिए n की वैल्यू यहां क्या होगी? 1। l की वैल्यू क्या होगी? 0। पॉसिबल है ये चीज? या n की वैल्यू क्या होगी बोलो? 1। और l की वैल्यू p में हमेशा क्या होगी? 1। और आपको पता है n और l की वैल्यू कांट बी सेम। n और l की वैल्यू कांट बी सेम। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। 1p नेवर बी, कभी नहीं होगा। तो यू कैन से फर्स्ट सेल में ओनली s ऑर्बिटल होगा, p नहीं होगा, d भी नहीं होगा, f भी नहीं होगा। देखो d भी नहीं हो सकता ना। देखो सिंपल सी बात है, n की वैल्यू क्या है? 1। तो d के लिए हमेशा क्या वैल्यू होगी? l की क्या होगी? 2। और n से l की वैल्यू तो बड़ी हो ही नहीं सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहती है? छोटी। तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक दैट 1f भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
n की वैल्यू क्या होगी 1 और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी l की वैल्यू क्या हो जाएगी f के लिए, दैट इज 3. दैट इज नेवर पॉसिबल. तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा. देखिए आगे आई एम राइटिंग सम ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p. मैं वही ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं जो पॉसिबल है. 1s पॉसिबल है, फर्स्ट में s सिर्फ, p नहीं, d नहीं, f नहीं. सेकेंड में पॉसिबल 2s है, 2p है. 2d नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2d क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी 2 और l की वैल्यू भी क्या होगी 2. अब दोनों वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती. 1s 2s 2p देन 3s 3p 3d. थर्ड में 3 पॉसिबल है. उसके बाद 3f नहीं हो सकता. अब देखो वेरी सिंपल थिंग, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा s, फर्स्ट सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल, सेकेंड सेल में 2 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल s एंड p, थर्ड सेल में 3 ऑर्बिटल्स 3s 3p 3d. और फोर्थ में कौन कौन से पॉसिबल है, 4s 4p 4d एंड 4f. ऑल आर पॉसिबल. These are some orbitals I have written. Or you can say in first cell only 1 orbital is there. In second 2 orbitals are possible, s and p. Third में 3 orbitals are possible, 3s 3p 3d. Fourth में 4s 4p 4d and 4, all 4 orbitals. And fifth sixth में सभी में 4, क्योंकि orbitals total क्या है 4, s p d, all are possible. You can understand like this. और अब दिस द वर्क ऑफ दिस प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है दैट इज एज पर इंक्रीजिंग एनर्जी. और एनर्जी किसके ऊपर डिसाइडेड है, n प्लस l के बेसिस के ऊपर. और आपको पता है l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी. 0 के लिए हमेशा क्या होता है s, 1 के लिए क्या होता है p, 2 के लिए d और 3 के लिए क्या होती है f. l की वैल्यू फिक्स है किसी भी सेल के लिए. अब यहां n प्लस l, अब एनर्जी निकालेंगे. अब एनर्जी निकालते हैं कि देखो कैसे. अब बोलो यहां इसी निकालते हैं. n की वैल्यू बोलो व्हाट इज दैट 1, l की वैल्यू बोलो दैट विल बी 0. टोटल सम क्या आ गया n प्लस l दैट इज 1. क्लियर. अब इधर देखिए n की वैल्यू दैट इज 2, l की वैल्यू 0 क्योंकि s के लिए हमेशा 0. तो ये क्या आ गया n प्लस l, n प्लस l क्या आ गया दैट इज 2. लाइक दिस कम हियर. n की वैल्यू 2, l वैल्यू इज 1 क्योंकि p में हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 1. तो सम ऑफ दिस n प्लस l दैट इज 3. कम हियर. n वैल्यू 3, l वैल्यू 0 and this is n plus l sum that is 3. Come here. n value is 3, l value is 1. Pt is 1. So this sum is n plus l is that is 4. Come here. n value is 3, l value is 2. You can see sum of this n plus l that is 5. Come here. n value is 4, l value is 0. Sum of this n plus l that is 4. That is 4. Come here. n value is 4, l value is 1. Sum of this that is 5. Come here. n is equal to 4, l is equal to 2. n plus l value is that is 6. And see here, n value is 4, l value is 3. Sum of these that is 7.
तो ये वेरियस ऑर्बिटल्स आगे भी होंगे, आगे भी बात करेंगे। अब देखिए इन ऑर्बिटल्स में आपने क्या देखना है, n+l ग्रुप एनर्जी को डिसाइड करेगा। कहने का मतलब है n+l सम दैट डिपेंड अपॉन व्हाट एनर्जी। n+l की वैल्यू ज्यादा तो मोर एनर्जी देगा। तो अब देखिए सबसे कम वैल्यू किसकी आई है, 1s के लिए आई है 1। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसमें की होगी, 1s। उसके बाद देखिए यहां 2s की वैल्यू क्या है, 2। उसके बाद एनर्जी किसकी, 2s। क्लियर, क्योंकि n+l डिपेंड किस पे करता है, एनर्जी पे। कम हियर, अब देखिए यहां 3 एंड हियर 3, 2p and 3s have same sum of n+l वैल्यू। अब यहां अगर वैल्यू सेम आ जाए, सम ऑफ nl इज सेम, देन एनर्जी डिसाइडेड बाय n, और यू कैन n दैट डिपेंड किस पे करेगा, यहां एनर्जी पे। या n+l डिसाइडर नहीं है ना, क्योंकि दोनों में वैल्यू क्या है, सेम। तो यहां डिसाइडर कौन होगा, n देखो यहां n की वैल्यू क्या है, 2, n की वैल्यू यहां क्या है, 3, और n दैट डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी पे। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना 3s की इन कंपेरिजन ऑफ 2p। तो इसका मतलब 1s के बाद क्या है, 2s। 2s के बाद कौन आएगा, 2p। उसके बाद कौन आएगा, 3s। कौन आएगा, 1s 2s 2p 3s। अब देखिए यहां कम है। अब देखो यहां 3p में n+l वैल्यू क्या, 4। अब देखो उसके बाद 4s में भी ये दो वैल्यूज क्या है, सेम है। अब यहां भी n+l से डिसाइड हो रही है, कौन डिसाइड करेगा यहां, n की वैल्यू यहां क्या है, 4, यहां क्या है, 3। तो इसका मतलब 3s के बाद कौन आएगा, 3p। उसके बाद 3d ना आगे कौन आएगा, 4s। रीजन भी आपके पास है। 4s के बाद आइए, उसके बाद यहां 3d 5 है, और यहां भी 4p में क्या है, 5। दो जगह 5। अब यहां भी कौन डिसाइडर होगा, n की वैल्यू डिसाइडर होगी। तो n की वैल्यू यहां मोर है। तो इस बेसिस पे 4s के बाद क्या है, 3d। 3d के बाद क्या आएगा, 4p। 4p के बाद क्या आएगा आगे, 5s लाइक दिस। ये मैंने आपको कैसे एनर्जी निकालते हैं वेरियस ऑर्बिटल्स की। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर ये काफी लेंथी हो जाएगा, किस किस की निकाले, n+l काफी टाइम कंज्यूम होंगे। तो इसलिए मैं अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो दिस प्रिंसिपल टेल्स अबाउट द, और यू कैन से, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल एज पर इंक्रीज इन एनर्जी, और एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n+l ग्रुप। ठीक है, और वो हमने अभी डिसाइड की थी किसकी एनर्जी कम थी, सबसे 1s। तो इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल किया जाएगा 1s में, फिर किसका नंबर आ जाए, 2s का, लाइक दिस। और ये काफी लंबी सीरीज बन जाती है, और इसको थोड़ा सा निकालने में टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और आई थिंक यू विल एंजॉय इट। देखिए लिसन, यहां मैं लिखता हूं एस, स्कूल, ऐसे याद करो, स्कूल। फिर यहां पब्लिक स्कूल, 2 टाइम्स पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। आफ्टर दैट DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 टाइम्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देन F, फाड़ू, हरियाणवी में कहते हैं मस्त काम को क्या कहते हैं, फाड़ू। तो दिस इज फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। वेरी इजी टू रिमेंबर इट। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में
स्कूल स्कूल, उसके बाद 2 टाइम्स मैंने रिपीट किया अपने एक चीज को, क्या कहा मैंने यहां, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, क्लियर। या मैंने क्या कहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, हियर 2 टाइम्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, हियर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक बार मैंने यहां कहा, उसके बाद फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। अब लिसन, कम टू हियर, फर्स्ट सेल से स्टार्ट करते हैं। यहां लिसन, आई राइट 1s। अब मैं यहां आता हूं, अब देखो फर्स्ट सेल में पी ऑर्बिटल नहीं होता, भी प्रूव किया हमने। फर्स्ट सेल में पी होता ही नहीं ना, क्योंकि एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होती, तो इस बेसिस पे पी कहां से स्टार्ट होता, सेकेंड सेल से। अब कम हियर डी, 1d नहीं होता ना, 2d भी नहीं होता, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी 2, l की वैल्यू भी क्या होगी 2, और आपको पता है n l वैल्यू कांट बी सेम। तो ऑन दिस बेसिस d कहां से स्टार्ट होगा, थर्ड से स्टार्ट होगा। अब कम हियर, अब देखो f कहां से स्टार्ट होगा, फोर्थ से, क्योंकि फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में एक ही ऑर्बिटल होगा, सेकंड में 2 ऑर्बिटल होंगे s एंड p, थर्ड में क्या होंगे s p d, एंड फोर्थ में s p d, तो कहां से स्टार्ट होगा, आई थिंक ये बात बिल्कुल सिंपल। पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 एंड 4, उसके बाद यू आर टू फिल। अब देखो मैं यहां क्या 1s के बाद क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, 1s तो आ चुका है, हियर राइट 2s। अब देखिए यहां 2p, अब बोलो यहां 1s और 2s तो आ चुके हैं ना, उसके बाद यहां क्या आएगा, व्हाट इज दिस, 3s। अब कम हियर p आ गया ना, p 2p तो हो चुका है, अब बोलो यहां क्या आएगा, 3p, 3s 3p। अब सी है s, देखो s 1s हो चुका है, 2s हो चुका है, 3s हो चुका है, अब किसका नंबर आएगा, 4s, क्लियर। कम हियर 3d, अब बोलो ये क्या है, p बना ना, p कहां तक पहुंच चुके हैं, ऊपर तक चेक करो, 3p आ चुका है ना, अब यहां क्या आएगा 4p। अब फिर s आ गया, s ऊपर तक चेक करो कहां तक बढ़ चुके हैं, s में 4s तक आ चुके हैं, तो हियर 5s। अब इधर d में, d देखो कहां तक बढ़ चुके हैं, 3d आ चुका है ना हमारे पास, वो देखो ऊपर d था ही नहीं, तो यहां क्या आएगा 4d। अब इधर p पे आ गया, p कहां तक बढ़ चुके हैं, 4p आ चुका है हमारे पास, उसके बाद इसका मतलब इट विल बी 5p। अब देखो s फिल करना है, s कहां तक आ चुका है, चेक करो, 5s आ चुका है, तो दिस विल बी 6s। कम हियर 4s। अब ये d बनना है, d चेक करो कहां तक आ चुका है, 3d आ चुका है, 4d भी आ चुका है, अब बोलो क्या आएगा 5d। कम हियर p फिल करना, p कहां तक आ चुका है, चेक करो, p लास्ट क्या है 5p, तो दिस विल बी 6p। कम हियर s फिल करना, s कहां तक आ चुका है, चेक करो 6s, तो इट विल बी 7s। कम हियर f कहां तक आ चुके हैं 4f, तो इट विल बी 5f। हियर d फिल करना, d कहां तक आ चुका है 5d, तो इट विल बी 6d। कम हियर p कहां तक आ चुका है, चेक करें 6p, तो दिस विल बी 7p। s कहां तक आ चुका है, s चेक करो 7s, तो इट विल बी 8s। अरे ये सब का सब क्या है, n प्लस एल से ही है ये सब। अब बोलो सबसे पहले कौन आया 1s, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी 1s, उसके बाद क्या है 2s, उसके बाद देखिए क्या है 2p, देन 3s, देन 3p, then 4s, then 3d, then 4p. This is increasing order of energy of various orbital, and this energy level is decided by n plus l. तो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s लाइक दिस, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी बताया और ट्रिक के साथ बताया, एंड यू विल
practice it by writing it. Thank you from my side. Next thing we'll be discussing next video. Thank you.